brings us to the third part of this chapter, kinetic theory of gases and radiation. Stop discussions now. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि मोनोएटॉमिक gas can have three translational degrees of freedom. Do you remember this? Well, it can move along x-axis, y-axis, and z-axis. So it will have three translational degrees of freedom. It can have three translational degrees of freedom. Whereas डायटॉमिक गैस जो होता है वो डिपेंड करेगा कि उसमें वाइब्रेशन है या नहीं है. डायटॉमिक गैस जो होता है उसके लिए डायग्राम मैंने एक स्ट्रक्चर दिया था, अगर आपको याद होगा तो वो स्ट्रक्चर मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया था मेरे ख्याल से. या सो दिस इज इट. द मोनोएटॉमिक गैस, diatomic gas, monoatomic gas can have only x, it can have move along x direction, y direction, z direction, so it will have 3 degrees of freedom. Diatomic gas उसके 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अगर ये रोटेट करेगा अबाउट एक्स एक्सिस तो दिखेगा नहीं. सो इट विल हैव इट्स रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओनली अलोंग द वाई एंड जेड एक्सिस. डू यू रिमेंबर? सो दिस विल हैव 5 degrees of freedom, isn't it? Triatomic gas can have any geometry. It can have the geometry. This is called as the linear geometry and this is called as the planar geometry. तो ट्राइटोमिक गैस इसमें से किसी एक प्रकार का हो सकता है. उसके बारे में ज्यादा हमने बात नहीं करी है. देन इन द लास्ट लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट मोनोएटॉमिक गैस कैन हैव 3 degrees of freedom. Diatomic gas, the diatomic gas can have 3 plus 2 in all 5 degrees of freedom. ये 3 degrees of freedom है for the translational motion and these 2 degrees of freedom are for the rotational motion, isn't it? So in all it will have 5 degrees of freedom, isn't it? ये रहा 5. If it does not vibrate, we call this as the rigid molecule. Example is hydrogen. लेकिन अगर वो वाइब्रेट करता है तो diatomic molecules like carbon monoxide, they are having mode of vibration even at the moderate temperature. तो वाइब्रेशन जो होता है तो उसके अपार्ट फ्रॉम दीज आर द 3 degrees of freedom for the translational motion and these are the 2 degrees of freedom for the rotational motion. लेकिन वाइब्रेशन तो इसका वाइब्रेशन का एनर्जी होगा 2 फॉर्मेट्स में. इट कैन हैव द वाइब्रेशन का एनर्जी इन द काइनेटिक एनर्जी फॉर्म which is half mv square. V is dy by dt when it is moving along y direction. Vy, as we already know in application of derivatives, the velocity is rate of change of displacement with respect to time. So when it is moving along the y direction, the velocity along y direction is given by Vy, that is dy by dt. So half mv square, this is the kinetic energy mode of vibrational energy. Vibrational energy can have will be present there in 2 forms. एक काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगा और एक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होगा. पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म मतलब कि भाई अगर ये है स्प्रिंग एंड दिस इज द मास एंड इफ वी अलाउ दिस मास टू वाइब्रेट तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. हाफ के वाई स्क्वायर बोल सकते हैं इफ इट इज मूविंग अलोंग द वाई डायरेक्शन. डू यू अंडरस्टैंड दैट? So this is half ky square. So this is the potential energy format. This is the energy stored in the potential energy stored in the spring, if you remember. ये फॉर्मूला आपको पता है, याद है? The potential energy stored in the spring is given by half kx या half ky square, where k is the stiffness constant and x is the compression or elongation of the spring, deformation of the spring. Do you remember this? Isn't it? तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों के फॉर्मूला पेज पे ट्रांसफर हो चुके हैं. I hope so. So vibrational mode, if the diatomic molecule is having vibrational mode, then it will have 2 degrees of freedom for this vibrational motion. So जिसका वाइब्रेशन है उसके टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 plus 2 plus 2 7 degrees of freedom this will possess. A diatomic molecule which vibrates is going to have 7 degrees of freedom. Is that clear? Do we know this? We have already talked about this. मैं बस इसको रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ. I'm just trying to refresh this. You see, because we are going to make use of this for this lecture, today's lecture. इसकी जरूरत पड़ेगी. तो मैं बस इससे चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हमने बात करी थी उसके बाद मैंने बात करी थी इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. Okay,
So they say that for a gas in thermal equilibrium at a temperature T, the average energy of for molecule associated with each degree of freedom is half kBT. हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी associated with each degree of freedom is half kBT for any gas molecule. Is that clear to all? Is this okay? So इस बेसिस पर आप मुझे ये बताइए. Now I'm going to make use of this basis here. I'm going to make use of this basis here. ठीक है? Half kBT is the energy associated with one molecule with 1 degree of freedom. Is that clear? I'm going to take this further for today's lecture now. Now if I am considering a monoatomic gas, I'll consider a monoatomic gas. Monoatomic gas. Can you tell me how many degrees of freedom it has? अभी हमने रिवाइज किया था. The number of degrees of freedom for the monoatomic gas is 3. Is that clear? 3 थे ना? चलिए अब मुझे बताइए यहां पर दोबारा रेफर करके व्हाट इज द एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कितना? हाफ kBT. दिस इज द फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kBT. आई रिपीट, एनर्जी एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना एनर्जी है उसका? हाफ kBT. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस हमने पहले लेक्चर में देखा था, अगर आपको याद होगा तो. एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस सेज व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल. एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जी? देखा है ना? 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. Na कितना होता है? 6.03 into 10⁻23. बराबर है. सो इफ आई वांट टू राइट हियर दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल, लेकिन एक मोल के अंदर Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इजंट इट? अच्छा, यहां पर अब मुझे आगे लिखना है व्हाट इज द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डी. लेकिन मोनोएटॉमिक गैस की अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो इसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3. ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतना एनर्जी. तो अगर मैं लिखता हूं व्हाट इज एवरेज एनर्जी ऑफ कोर्स पर मॉलिक्यूल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होगा? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इट विल बी 3/2 kBT. इज दिस ओके? एक इसको प्लीज बंद करेंगे. somebody please close the door. yeah, thank you. so this is the average energy per molecule. एक मॉलिक्यूल का ये एवरेज एनर्जी है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब मुझे चाहिए एवरेज एनर्जी पर मोल. देखिए एक मॉलिक्यूल का इतना, एक मोल के अंदर Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो व्हाट विल बी दैट? यू जस्ट हैव टू, एक मॉलिक्यूल का इतना, 2 मॉलिक्यूल का इंटू 2, 3 मॉलिक्यूल का इंटू 3, Na मॉलिक्यूल्स का इंटू Na. हेलो, अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोल दो, नहीं तो मैं फंस जाता हूँ वहां पे. चलिए बताए. तो दिस इज 3/2 kB इंटू Na इंटू T. एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? वेरी क्लियर. चलिए, और हमने ये भी देखा था कि भाई कई ये kB इंटू Na इज इक्वल टू समथिंग समथिंग. फिल इन द ब्लैंक्स. सेकेंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर. kB इंटू Na इज इक्वल टू समथिंग समथिंग. kB इंटू Na इज इक्वल टू R. फॉर्मूला पेज पे ट्रांसफर है तुम्हारे फॉर्मूले? हाँ दिख तो रहा है. आप बता रहे हो इतने फटाफट से फॉर्मूले. वेरी गुड. सो आई विल राइट दिस एज 3/2 RT. कैन आई से सो? दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे. kB इंटू Na इज इक्वल टू R. हेलो,
हेलो, ग्रेट 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 ग्रेट। अब एक चीज और मुझे बताइए आप लोग, पिछले लेक्चर में हमने सीपी और सीवी की बात करी थी मेयर्स रिलेशन के तहत। मेयर्स रिलेशन में एक गैस लिया था, उस गैस को हमने पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट किया, मतलब उसका वी डिड नॉट अलाउ द गैस टू एक्सपैंड, इट वाज दिस, वी डिड नॉट अलाउ द गैस टू हीट टू एक्सपैंड। इसके बाद हमने और एक चीज कंसीडर करी कि भाई इसको फिट जो किया था ना, इसको हटा दिया और इसके ऊपर कुछ वजन रख दिया, एंड देन वी हीटेड द गैस। यस, isn't it? यहां पर गैस was heated at constant volume. Can you see that? यहां पर गैस was heated at constant volume. Do you understand that? Do you remember that? यहां पर the gas was heated at constant volume, isn't it? और यहां पर हमने बात करी थी स्पेसिफिक हीट की, Q is equal to ms delta T. Q heat, m mass, s specific heat, delta T change in the temperature. So S is equal to dq by m into dt. Specific heat for liquids and solids only one specific heat, लेकिन gases के लिए दो specific heats होती है, right? One is at constant volume, जिसको हम CV कहते हैं। तो यही इक्वेशन अगर मैं लिखूं यहां पर, देखिए dq is equal to m is the mass, s is the specific heat, dt is the temperature, change in the temperature। लेकिन जहां पर बात आती है गैसेस की, तो गैसेस के लिए हम क्या करते हैं, इन फॉर द गैसेस व्हाट वी से, फॉर द गैसेस इंस्टेड ऑफ मास वी से नंबर ऑफ मोल्स। तो यही इक्वेशन चेंज होके हो जाएगा, dq इज इक्वल टू n इंटू सी इंटू dt। ये है इक्वेशन ऑफ हीट फॉर द सॉलिड्स और ये है इक्वेशन ऑफ हीट फॉर द गैसेस। दिस इज मास एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट? गैसेस को मेजर करने का तरीका है नंबर ऑफ मोल्स। अब ये जो स्पेसिफिक हीट है, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है या कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये एक्सपेरिमेंट था, मैं दोबारा सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर। तो दिस विल बी रिटन एज dq इज इक्वल टू n इंटू cv इंटू dt। अगर यहां पर 1 मोल ऑफ गैस है तो n इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा dq वॉट एवर हीट इज सप्लाइड हियर is used only for increasing its internal energy, क्योंकि हम उसको एक्सपांड होने के अलाउ नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? वी आर नॉट अलाउिंग द गैस टू एक्सपांड, सो वॉट एवर उसको जो भी कुछ दिया जाएगा वो अपना पेट भरेगा, इट विल इंक्रीज ओनली इट्स इंटरनल एनर्जी। तो हम उस एनर्जी को कहते हैं DE, वॉट एवर हीट इज एडेड इज यूटिलाइज फॉर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? So the equation becomes dq1 is equal to dE is equal to 1 cv dt. Do you get that? On the contrary, when the heat is added at constant pressure like this, यहां पर अगर हम उसको अलाउ कर रहे हैं एक्सपांड होने का, तो वो एक्सपांड होगा, लेकिन पहले वो खुद का पेट भरेगा। First it will increase its internal energy. After fulfilling that condition, जब हो गया तब वो बोले हाँ अभी मैं external work of expansion कर लूंगा। Do you understand that? Isn't it? So whatever heat was added at constant pressure, it is utilized for two purposes. पहला purpose increase in its internal energy and दूसरा purpose doing the work of external work of expansion. ये सब मैंने explain किया हुआ है पहले ही, दोबारा आपको बता रहा हूँ। Is that okay? So ये जो equation है 1 मोल वाला, ये जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा? यहां पर dq हम इसको बोलेंगे dE प्लस dW इज इक्वल टू 1 Cp डेल्टा टी। लेकिन हमें मालूम है dE इज नथिंग बट 1 Cv डेल्टा टी। सब्स्टिट्यूट किया, ये सब कर लिया यहाँ पे। इज दैट ओके? अब मुझे कौन सा इक्वेशन यहाँ पर यूज करना है? आई वांट टू यूज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे एंड आई विल टेक इट टू दिस टुडेज लेक्चर। टुडेज लेक्चर में, आज के लेक्चर में ये मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है? देखिए उसी में से एक इक्वेशन सिर्फ मैंने पकड़ के यहाँ पे लाया है एंड आई एम ट्राइंग टू रीअरेंज दिस इक्वेशन। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज CV इज इक्वल टू? CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT। ये इक्वेशन मुझे मिल गया जी। इज दिस क्लियर? एंड आई वांट टू यूज दिस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया, CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT। इज दैट क्लियर? अब इसको मैं डेरिवेटिव भी बोल सकता हूँ।
लेट्स यूज लिटिल बिट ऑफ मैथ्स हियर नाउ. सो व्हाट विल बी, अच्छा ये एक इक्वेशन हो गया. दूसरा इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था विच इज मैश रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. कौन सा है दूसरा इक्वेशन? Cp minus Cv is equal to R. Another equation, Cp minus Cv is equal to R. Well, I'm going to make use of these two equations to solve few things for monoatomic, diatomic and polyatomic gases. Let's see one by one. एक एक करके देख लेते हैं इसको. चलिए देखते हैं. अब मुझे यहाँ पर है एवरेज एनर्जी पर मोल. Let me denote this energy per mole as E. Average energy, I'll denote this as E. E. Is this okay? Is this clear? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब मुझे इसका CV वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो व्हाट विल बी CV इज इक्वल टू, इट इज एक्चुअली D बाई dt of E, but E is equal to what? E is equal to 3 by 2 RT. समझे? R is the constant, 3 by 2 is the constant. So what is, ये जो constants अगर हम बाहर निकालें, if I take this constants out, अगर ये दोनों constants को मैं बाहर निकाल दूं, तो d by dt of t is 1. You see? So what is this going to give me? What is this going to give me? This will give me that is equal to 3 by 2 R. So what is CV is equal to 3 by 2 R. Understood? And Cp is equal to Cv plus R. बोले तो 3 by 2 R plus R मतलब 5 by 2 R. Cp is equal to 5 by 2 R. Any doubts about that? Is this okay? And here we denote another constant, the ratio of specific heats. यहाँ पर और एक constant, ratio of specific heats. The ratio of specific heats is denoted by gamma, alpha, beta, gamma, and it is actually Cp upon Cv. This is third formula that we are using here. ये तीसरा formula है. So let me just substitute here. दोनों Cp और Cv अगर substitute करेंगे तो gamma is equal to Cp upon Cv. That is equal to 5 by 2 R. 5 by 2 R divided by 3 by 2 R, and therefore gamma is equal to 5 upon 3. So these are the values of Cp, Cv and gamma for the monoatomic gas. Is that clear? Is this clear? I'll go back to the second part, the diatomic. Diatomic की बात करते हैं. यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डायटोमिक के लिए हमने क्या लिखा है? Well, this is what we wrote for the monoatomic gas. Monoatomic gas के लिए हमने क्या लिखा है? ये लिखा है 3 degrees of freedom. अब बात करेंगे diatomic gas, like hydrogen, which is a rigid molecule which does not vibrate and it has got 5 degrees of freedom. Is this okay? Is this clear? चलिए बात करते हैं, क्या लिखेंगे बताइए? For the diatomic gas, a rigid diatomic gas molecule like hydrogen which does not vibrate. सेम चीजें, यही चीजें मुझे लिखनी है उसके लिए, यही सारी की सारी चीजें मुझे लिखनी है उसके लिए. I'll just copy this यहाँ पे. लेकिन इस बार मुझे इसको बोलना पड़ेगा तू B है और तू डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है. समझे? दिस इज B एंड दिस इज डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं इसके? कुल मिलाकर 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल इज इक्वल टू 5. तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBt. एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इट विल बी व्हाट? 5 into k, 5 by 2 kBt. एब्सोल्युटली करेक्ट. इट विल बी 5 by 2 kBt. ये तो हाफ ही होगा. Yes. So this is half. This is 5 by 2 kBt. Average energy per molecule. This is average energy per mole. It will be 5 by 2 kBt into Na, but Na into kB is R, and this will become 5 by 2 RT. आगे का एनालिसिस आप मुझे बताओगे. हमने आगे क्या किया था? वहां पे 3 चीजें की थी. क्या क्या करी थी? Let me just copy this once again. क्या क्या किया था मैंने यहाँ पे? There were 3 things that we used here.
व्हाट आर दोस? ये तीनों फॉर्मूले सीवी, ये तीनों फॉर्मूले अब मुझे यूज करने हैं यहाँ पे। लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर। तो चलिए बताइए क्या होगा ये। व्हाट इज सीवी इज इक्वल टू फॉर द, अच्छा बाय द वे ये कौन सा मॉलिक्यूल है? द एटॉमिक एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नो वाइब्रेशन वाला मॉलिक्यूल है ना? नो वाइब्रेशन, इजंट इट? चलिए ये व्हाट विल बी सीवी इज इक्वल टू, बताइए, डी बाई डी टी ऑफ ई। व्हाट इज ई? 5/2 आर टी। तो व्हाट इज सीवी इज इक्वल टू 5/2 इंटू आर। व्हाट इज सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, मतलब 5/2 r plus r, and therefore what is CV is equal to 7/2 r. Is this okay? And the ratio of specific heats gamma is equal to 7/2 r divided by 5/2 r, and therefore gamma is equal to 7/5. Any doubts about that? Is this okay? Now we talk about the molecule. कौन सा molecule आप बताइए? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, विच वाइब्रेट्स। तो वाइब्रेशन की वजह से व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? 7, isn't it? So let's talk about that. You help me here, come on. This will be, बोलिए क्या बनेगा ये? क्या क्या चेंज करना है मुझे? चलिए बताइए कौन सा मॉलिक्यूल है ये? सी, डायटोमिक गैस with vibration. Example, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीन मॉलिक्यूल्स है। तो इसके 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 rotational degrees of freedom and 2 vibrational degrees of freedom. So total degrees of freedom 7, isn't it? So this becomes 7/2. 7/2 kb Na. Is this okay? And this is going to be 7/2 RT. Any doubts about that? बता रहे, समझ में आ रहा है? So what will be CV here? Come on, tell me please. CV is equal to d by dt of 7/2 RT. Now that is CV is equal to 7/2 R. CP is equal to CV plus R. That is equal to 7/2 R plus R. And that is equal to 9/2 R. This is CP. And the next one is gamma. So gamma is equal to 9/2 R divided by 7/2 R. And therefore what is gamma is equal to 9/7. Is this clear to all? Any doubts about that? समझ में आ गया सबको? Okay. Now we consider the polyatomic gas. Polyatomic gas की अगर बात करें तो for polyatomic gas I'll go for this part, first section. पहले लेक्चर में लास्ट वाले पार्ट में चले जाते हैं। यहाँ पॉलीएटॉमिक मतलब यहाँ पर हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। Now it can have linear geometry here. This is called as linear geometry. This is called as linear geometry, or it can have planar geometry also. It can have planar geometry also. I'll just copy this over here. For the triatomic gas molecules को ही ये लोग यहाँ पे बुक में बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। मोर देन 2 मतलब पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, जिसको हम ट्राइएटॉमिक बोलेंगे यहाँ। इज दैट क्लियर? नाउ इट कैन हैव लीनियर ज्योमेट्री। अगर लीनियर ज्योमेट्री होगा तो इसके नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? ट्रांसलेशनल के तो 3 ही होंगे। लेकिन जस्ट लाइक द
डायटोमिक मॉलिक्यूल, यहां पर डायटोमिक का ज्योमेट्री जो है वो और ट्रायटोमिक का लीनियर ज्योमेट्री इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेम। उसका रोटेशन विल हैव ओनली 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दिस ओके? जैसे कि यहाँ पे इट विल हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्स वाई जेड का, लेकिन रोटेशन में ये वाला रोटेशन होगा, ये होगा, लेकिन यहाँ पर रोटेट होगा तो पता ही नहीं चलेगा। So same is the case for triatomic gas molecule with linear geometry. Same is the case for triatomic gas molecule with linear geometry. So उसके rotational degrees of freedom कितने होंगे? 2. Rotational degrees of freedom कितने होंगे? 2. Is this okay? Isn't it? And अब उसके जो what do you say vibrational degrees of freedom होंगे, वो भी 2 होते हैं या कई बार ज्यादा भी हो सकते हैं। So let me say Fv is the degree of freedom for vibration. Fv, F suffix v. Is this clear to you all? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Isn't it? Likewise, अगर ये वाला प्लेनर वाला ज्योमेट्री है, तो प्लेनर ज्योमेट्री में अगर इसे मैं ऐसे कंसिडर कर लूं, let's say if I consider it something like this. अगर इसको ऐसा कंसिडर करेंगे, तो अगर मैं उसको अलोंग एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, कहीं भी रोटेट करूंगा तो उसका दिखेगा ना रोटेशन मुझे, इजंट इट? अगर उसको ऐसे घुमाएंगे अबाउट एक्स एक्सिस तो इट इज देयर, अबाउट वाई एक्सिस भी मिलेगा और अबाउट जेड एक्सिस भी मिलेगा। सो दिस प्लेनर ज्योमेट्री विल हैव नो डाउट 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यू सी, it will have 3 translational and 3 rotational degrees of freedom. Do you understand that? And let me say that this has got Fv number of vibrational degrees of freedom. तो उसके अगर linear geometry है तो this will become 5 plus Fv degrees of freedom, यहाँ पर होगा 6 plus Fv degrees of freedom. Is this clear to you all? Is this okay? समझ में आ रहा है? Isn't it? तो वाइब्रेशनल का दोबारा बताऊं? नहीं, ओनली 2। अच्छा, अब देखिए और एक चीज हमने क्या देखा, वाइब्रेशन के लिए फॉर ईच वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन है तो उस वाइब्रेशन के वाइब्रेशन विल बी देयर बिकॉज ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। वाइब्रेशन विल बी देयर, हमने देखा था ना वाइब्रेशन का जो टर्म देखा था हमने कि भाई एक वाइब्रेशन है फॉर ईच वाइब्रेशनल मोड, यहां पे देखा था, isn't it? It has a vibrational का जो mode है, for each vibrational mode its atom vibrates along the interatomic axis and contribute a vibrational energy in terms ev. तो energy of vibration जो है it will have 2 types of energies, एक kinetic और एक potential, half kx square and half mv square। एक वाइब्रेशन के लिए 2 है तो f वाइब्रेशंस के लिए 2 times f। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? एक वाइब्रेशन के लिए एक वाइब्रेशनल, अगर एक मोड फॉर वन मोड ऑफ वाइब्रेशन इट हैज गॉट 2 times, you have to take that term twice, isn't it? So let's come back here, let's come back here। यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी, isn't it? For one vibrational mode तुम्हारे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आते हैं, यस और नो, isn't it? अगर यहां पर f वाइब्रेशनल मोड्स है, फॉर f वाइब्रेशनल मोड्स, f वाइब्रेशनल मोड्स, उसके इंटू 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ईच वाइब्रेशनल मोड विल कंट्रीब्यूट वन फॉर काइनेटिक एंड वन फॉर पोटेंशियल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इज दिस क्लियर? अब हम बात करेंगे कि भाई इसका एनर्जी क्या हो, दोनों का भी अलग अलग से एनर्जी का मुझे लिखना है यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है? तो जैसे मोनोएटॉमिक का लिखा है, डायटॉमिक का लिखा है इन द सेम वे।
एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं। एवरेज एनर्जी फर्स्ट आई राइट फॉर ये वाला प्लेनर ज्योमेट्री वाला, तो यहां पर लिखता हूं प्लेनर ज्योमेट्री जो है उसके लिए लिखता हूं पहले। I'll write it for the planar geometry first. Average energy per molecule per degree of freedom कितना होगा? हाफ kBt। ठीक है, अब मुझे यहां पर इसके लिए लिखना है कि भाई एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब इसके लिए देखिए मुझे हर एक के लिए सेपरेट लिखना चाहता हूं मैं। आई विल राइट इट सेपरेट फॉर ईच ऑफ दिस। हर एक के लिए मैं सेपरेट लिखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, दिस विल बिकम, ट्रांसलेशनल का क्या होगा, 3/2 kBt। सही है, दिस इज फॉर ट्रांसलेशनल, प्लस 3/2 kBt, दिस इज फॉर रोटेशनल प्लेनर ज्योमेट्री। एंड यहां पर एक वाइब्रेशनल होगा तो इनटू 2 बार लेना पड़ता है, तो f वाइब्रेशनल मोड्स होंगे, तो दिस विल बिकम व्हाट, 2 times FV अपॉन इंटू हाफ kBt। समझे क्या? चलिए दोबारा थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं इसको मैं, देखिए गौर से, देखिए गौर से। सो यहां पर Fv जो है इसका काइनेटिक एनर्जी का भी आएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी का भी आएगा, करेक्ट? तो काइनेटिक एनर्जी वाला जो है, काइनेटिक एनर्जी वाला जो है वो कितना होगा, Fv by 2 kBt। व्हाट इज दिस? दिस इज वाइब्रेशनल एनर्जी काइनेटिक वाला फॉर्म, समझे? समझे? प्लस Fv upon 2 kBt, this is the vibrational energy of potential form. Is this okay? हेलो? अब अगर मुझे इसको कॉमन निकालना है, कुछ कॉमन निकाल सकता हूं मैं? यस, व्हाट कैन आई टेक कॉमन हियर? दिस इज लाइक हाफ kBt, आई टेक कॉमन, और ब्रैकेट में आएगा 3 + 3 6 + 2 टाइम्स Fv। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, अब ये 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? सो दिस विल बिकम व्हाट, kBt इंटू 3 + Fv। समझ में आ गया? दिस इज एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इजंट इट, फॉर ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये एक मॉलिक्यूल का मैंने लिखा है, इफ आई वांट टू राइट एवरेज एनर्जी पर मोल, एवरेज एनर्जी पर मोल, तो एक मोल के अंदर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? Na, Avogadro's number, Avogadro's number. So I'll say Na into Kb into T into 3 + Fv, yes or no? लेकिन Na Kb is equal to dash dash, so this will become 3 + Fv times RT, yes or no? Isn't it? This is the energy per mole. Energy per mole is denoted by E. Energy per mole is denoted by E. अब मुझे बताइए what is Cv is equal to dE/dt. You see, that means d/dt of 3 + Fv into RT. You see, now that is equal to 3 + Fv times R. Correct? Therefore, what will be Cp is equal to Cv plus R, that is equal to 3 + Fv into R plus R. So that is going to become 4 + Fv into R. Is this okay? This is Cp, this is Cv, and now we'll write gamma. What is gamma? Cp upon Cv is gamma. What is that equal to? बताइए. It is 4 + Fv
into R divided by 3 plus Fv into R. Do you understand that? Therefore, what is this gamma for the polyatomic molecules with planar geometry with vibration F modes is given by 4 plus Fv divided by 3 plus Fv. Is this okay? Any doubts about that? This is very clear. Okay, ये go to page number 64. पेज नंबर 64 गौर से देखिए, पेज नंबर 64 ये देखिए क्या दिया है यहाँ पे. इज इट द सेम थिंग? CV 3 plus FR, CP 4 plus FR. F एक्चुअली मैंने F के जगह पर क्या बोला है इसको, FV to denote vibration. So gamma is this. Now this is they have given for which molecule? Please check. कौन से molecule के लिए दिया है? They have given this for polyatomic gas. 1 mole of polyatomic gas. Polyatomic gas मतलब triatomic gas actually. Is this clear to you all? With vibration. Is that clear? Isn't it? समझ में आ गया? Isn't it? Now यहाँ पर उन्होंने कौन सा वाला ज्योमेट्री कंसिडर किया है? यहाँ पर they are talking about the, इसका एग्जाम्पल है अमोनिया गैस. इज दैट क्लियर? अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3 polyatomic gas. Is this clear to all? So this is for triatomic as well as polyatomic. इसके each molecule of polyatomic gas has 3 translational degrees of freedom. कितने? 3 translational. Only linear molecules have 2 degrees of freedom. Only linear, जो हमने अभी बात करी है already. Have we talked about that? Have we talked about that? Only linear molecules will have 2 degrees of rotational degrees of freedom for rotation. All other polyatomic can perform rotations about 3 mutually perpendicular axes through their center of mass. Hence they have 3 degrees of freedom for rotation also. बराबर है क्या? Linear geometry 3 degrees of freedom. Sorry, 2 degrees of rotational freedom. और इसके लिए क्या होगा? 3. Is that clear? एंड फिर इसके बाद फॉर polyatomic more than 1 degree of freedom. अच्छा, इसके बाद फिर उन्होंने कौन सी बात करी है? F number of vibrational, number of dio for F for vibrational motion. लेकिन एक अगर वाइब्रेशनल मोशन का एक अगर है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक काइनेटिक है, तो F होंगे अगर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन तो F 2F हो जाएंगे. इज दिस क्लियर? दिस इज वेरी क्लियर. इज दैट ओके? सो लेट मी कम बैक हियर. तो यहां पर हमने जो बात करी है वो सिर्फ प्लेनर ज्योमेट्री की है. Isn't it? We have talked about the planar geometry here. Similarly, can we talk about this? इसके लिए भी हम बात कर सकते हैं. Can you help me with that now? Can you help me with this for the linear geometry? बता सकते हो? Average energy per molecule. Average energy per molecule. ये मैं डायरेक्ट हाँ per molecule per degree of freedom. Per degree of freedom is equal to half kBt. अब मैं लिखूंगा एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल. अब मुझे सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अप्लाई करना है. क्या हो जाएगा बताइए? 3/2 kBt. ये तो हो गया ट्रांसलेशन का, बराबर है, प्लस 2/2 kBt. ये हो गया रोटेशनल का, प्लस Fv/2 kBt. दिस इज वाइब्रेशनल काइनेटिक फॉर्म, प्लस बोलिए Fv/2 kBt. दिस इज वाइब्रेशनल फॉर पोटेंशियल फॉर्म. इज दिस ओके? चलिए अब मुझे यहाँ पर कुछ कॉमन निकालना है. क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं? आई थिंक आई विल टेक दिस हाफ kBt कॉमन. हाफ kBt टेकन कॉमन. So this will give me 3 plus 2 5 plus
5 plus 2FV. Is this okay? और इससे ज्यादा हम इसका कुछ नहीं कर सकते. Now I'll write the next thing is average energy per mole. पर मोल कितना हो जाएगा? हाफ Na kBt in 5 plus 2 times the Fv. Now that is, this is equal to R na, so this is half RT into 5 plus 2 times Fv, isn't it? And therefore what will be Cv is equal to, इसको differentiate करेंगे so that will be, what is that, R by 2 5 plus 2 Fv. सही है? And then I'll write down what is Cp is equal to this plus R. So this will become R by 2 into 5 plus 2 Fv, isn't it? Plus R लिखना है, लेकिन यहाँ पर LCM के लिए मैं इसको लिखूंगा 2 by 2, isn't it? So what is this going to become? R by 2 is common there, and this will become 7 plus 2 Fv. You see, isn't it? 5 plus 2 is 7. सही है? And therefore what will be gamma for this? So gamma for this is given by Cp upon Cv, so that is going to be 7 plus 2 times Fv upon 5 plus 2 times Fv, and that's gamma. Is this okay? ये तो अपने टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, हमने यहाँ पर ये कर लिया है. Is this okay? Now if you refer, now if you refer here the, yeah, NCERT एट फिंगर टिप्स अगर आप रेफर करते हो तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर दे दिए हैं. देखिए गौर से, all the formula are given here, all the important formula are given here. It's a page number, it's page number पता नहीं 295 295. देखिए गौर से, प्लीज लुक एट दिस केयरफुली. यस, let us consider this now. Energy associated with each degree of freedom per molecule, is it half kBt? जो हमने अभी अभी लिखा था, हाफ kBt मिल गया. फॉर अ गैस of polyatomic molecules having f degrees of freedom. अब उन्होंने टोटल f degrees of freedom करके दे दिए, हमने वहां पर डिटेल में गए हैं, वाइब्रेशन के अलग कर दिए, बराबर है क्या? Isn't it? तो मैं पॉलीएटॉमिक की बात अगर कर लेता हूं तो मैं उसके बाद में मैं अभी नहीं बात करूंगा. I'll talk about the monoatomic gas 3 degrees of freedom, 3 by 2 RT, 3 by 2 R, 5 by 2 R, gamma 1.66 मतलब 5 by 3. Is this okay? Is that okay? डायटोमिक गैस, इन्होंने डायटोमिक का एक ही पार्ट डिस्कस किया है, कौन सा? नो वाइब्रेशन. दे हैव टॉक्ड अबाउट द वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन. नो वाइब्रेशन मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 plus 2 5. So this will become 5 by 2 RT, 5 by 2 R, 7 by 2 R, 1.4. That is equal to 7 upon 5. Is this okay? They have not discussed about with vibration. We have already talked about that. You can refer our notes for that. Yes or no? Isn't it? ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में भी उन्होंने यहां पर विदाउट वाइब्रेशन ही डिस्कस किया हुआ है. नो वाइब्रेशन. 6 का मतलब है 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल, दैट्स इट. नो वाइब्रेशन, बट इट विल हैव वाइब्रेशन आल्सो. सो वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल. डिटेल में हमने ये सब चीजें डिस्कस करी है. इज दिस ओके? So they have given here with linear molecules, with non-linear molecules, etc., etc. Is that clear? समझ में आ गया सबको ये? All right, fine. So now I'll take this here. कुछ और एडिशनल फॉर्मूले मुझे आपको बताने हैं. I have to tell you few more formulae. Please consider here. Please check here. We'll consider the same formula there.
मुझे बताइए व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस की बात करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना होता है? 3/2 RT, isn't it? 3/2 RT. So let me go to that part now. For special case consider कर रहे हैं, for a monoatomic gas, what is average? अब ये जो कुछ एनर्जी होता है गैस का जो भी कुछ एनर्जी होता है वो सब काइनेटिक फॉर्म में होता है, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स इस रूम में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे जैसे एंड दीज मॉलिक्यूल्स दे आर हैविंग रैंडम मोशन, बराबर है क्या? दे आर हैविंग रैंडम मोशन, सो वॉट एवर एनर्जी दे हैव दैट इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी, isn't it? जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो गैस मॉलिक्यूल्स दे विल स्टार्ट मूविंग विथ हायर वेलोसिटीज, सो वॉट एवर एनर्जी वी से वो सब काइनेटिक एनर्जी होता है उसका। so एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना होता है जी? इट विल बी हाफ Na टाइम्स kBt, बट दैट इज इक्वल टू हाफ RT, सही है, isn't it? This is for 1 mole of a gas. अच्छा, अब मुझे बताइए कि इफ आई वांट दिस एवरेज, I'm going to call this as kinetic energy per molecule, वो भी हमने लिखा था ना, what is the average energy per molecule? It is half kBt, half kBt, बराबर है क्या? Isn't it? Now that is also called as, अब इसे half mv square RT upon MPV, and do we know what is the mean kinetic energy? मतलब हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज गिवन बाय P इज इक्वल टू हाफ रो C स्क्वायर, यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? हेलो यार, ऐसे देख रहे हो, मुझे दिखाना पड़ेगा। एवरेज, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इट वाज सीन इन द फर्स्ट लेक्चर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से पहले शायद हमने ये देखा था, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दिस इज 1/3 रो C स्क्वायर हमने लिखा है यहाँ पर, I have written here, oh sorry, 1/3 rho C square, isn't it? This is 1/3 rho C square, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। दिस इज द मास एंड दिस इज द वॉल्यूम, एंड मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज अ डेंसिटी, तो उसको कई बार हम 1/3 rho C square भी लिखते हैं। यू रिमेंबर दिस, isn't it? What is rho? Rho is the density. Density is given by mass of the gas upon volume of the gas. Mass of the gas is capital M, which is, this is mass of each molecule and this is number of molecules. Do you understand that? Do you get that? Is this okay? Isn't it? So what shall I write here? अब यहाँ पर इसको मैंने ऐसा भी लिखा था, check here please. ये चीज, the same thing here. तो प्रेशर एक्सर्टेड इज 1/3 mNV अप इनटू V स्क्वायर, V इसको V स्क्वायर या C स्क्वायर भी कह सकते हैं, RMS स्पीड बोलते हैं इसको, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, बिकॉज दिस इज द टोटल मास ना, इफ आई से हियर दिस इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दैट विल गिव मी द टोटल मास ऑफ द गैस व्हिच इज कैपिटल M, यस और नो? इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो दिस इज हाफ mv स्क्वायर व्हिच हैपेंस टू बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, बराबर है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? तो अगर हम इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इफ आई डिनोट दिस बाय कैपिटल E, तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? अब यही अगर मैं लिखूंगा तो दिस विल बी रिटन एज, देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या आता है? 3/2 PV। डू यू गेट दैट? व्हाट इज दिस? दिस इज द एवरेज और KE मीन काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, average KE, or we also call this as mean
काइनेटिक एनर्जी. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझे क्या? ऑलराइट. और इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है. देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इजंट इट? नाउ आई विल टेक दिस फार्मूला हियर. यही फार्मूला मैं अब लेने वाला हूं यहां पे. आई एम गोइंग टू टेक ऑल दिस थिंग्स हियर. 3/2 pv. This is a question from SC Verma, page number 35. SC Verma, second part, page 35, question number 20. And chapter number is 24 here. Uska chapter number. Okay. Figure shows a vessel partitioned by a fixed diathermic मतलब allows the heat to flow. Diathermic. What is the meaning of diathermic? Which allows the heat to flow. Okay. Diathermic is sometimes also called as diabatic, or it is also called as diathermic. Allows the heat to flow. Okay, flow through it. Okay, दूसरा होता है adiabatic या adiabatic, or it is also called as athermic, and that does not allow the heat to flow through itself. Doesn't allow heat to flow through itself. Okay, तो ये थर्मिक मतलब इट, डायथर्मिक है मतलब इट अलाउज एक्चुअली. ठीक है. The different ideal gases are filled in the two parts. The RMS speed of molecules in left part, गौर से देखिए क्या दिया है यहाँ पे. RMS speed of molecules in the left part is equal to mean speed of molecules in the right part. RMS speed and mean speed, ये दो अलग अलग स्पीड्स होती है. Mean speed of molecules in the right part. Calculate the ratio of mass of molecule in the left part to the mass of molecule in the right part. Did you get the question? अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला यहाँ पर बताने जा रहा हूँ. देखिए, हमने जो देखा है वो RMS स्पीड का फॉर्मूला देखा है. वी हैव सीन द फॉर्मूला फॉर RMS वेलोसिटी और RMS स्पीड. ये है V बार C बार स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m0. व्हाट इज दैट? RMS स्पीड और RMS वेलोसिटी. The formula is, it is sometimes V bar या C bar is equal to, या VRMS CRMS is equal to square root of 3RT upon m0. m0 is the molecular weight. And what is the mean speed? mean speed का जो फॉर्मूला होता है, mean speed, ये नया फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, HSC में नहीं दिया, NCERT में भी नहीं दिया, बट SC वर्मा में दिया है. So this mean speed is equal to square root of 8RT upon pi m0. नया है यह. Is this okay? It's a new formula. तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली, आप लोग इसमें थे, डायलेमा में थे, अरे यू स्टार्टिंग विथ ये क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला उधर कम है, तो आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस फॉर्मूला, डू दिस फॉर्मूला, इसलिए मैंने यहाँ से शुरुआत करा. इज दैट क्लियर? ऑलराइट. तो यहाँ पर हमें बताया गया है, वी आर टोल्ड हियर, व्हाट इज गिवन हियर, दैट इज RMS CRMS फॉर द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू V mean speed for the second part. सही है, isn't it? So let's see, this is nothing but square root of 3RT. Different ideal gases are there. तो यहाँ पर एक गैस है और यहाँ पर एक गैस है, इसका मॉलिक्यूलर वेट m1 होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास m2 होगा. So this is square root of 3RT upon m1
is equal to square root of 8 RT upon pi times M2. Is this clear to you all? RT gets cancelled. So squaring both the sides we get क्या मिलेगा 3 upon M1 is equal to 8 upon pi M2, and therefore what is M1 upon M2 is equal to, I'll get the values of their masses there. M1 upon M2 is equal to 3 pi by 8. That's the answer. 3 pi by 8. If you do this on the calc, this comes out to be 1.18. That's the answer. Is this clear? नया फॉर्मूला क्या सीखने को मिला मुझे यहाँ पे? I think I'll stop here too. Is that clear to you all? Is that okay?